Hello students, welcome to our next video. So we are in class 9 chapter 7 triangle chapter. So today's topic is inequalities in a triangle. So far we have learned so many theorems and statements and axioms that is related to equal angles and equal sides. But now sometimes we have to come across angles which are not equal or sides which are not equal. So these unequal sides and angles are inequalities that occur in triangles. In some triangles, we have to learn some of the inequalities in a triangle. A triangle is made up of sides and angles. There are 3 sides and 3 angles. That means we have to deal with some unequal angles and unequal sides of a triangle. Like suppose if I will draw 2 lines, you can see that these 2 lines are not equal. That means there is an inequality resides between them, or inequality occurs between them. Okay, similarly if I draw an angle like this and an angle like this, you can clearly see that this angle 1 is greater than angle 2. So while we are talking about triangles, there are cases where sides and angles are not equal. So let's see one triangle. Suppose I draw a triangle like this. This is an obtuse angle triangle, and if it is named as ABC, you can easily see that AC, and for an obtuse angle triangle, AC is the longer side, and AC is greater than BC and AB. BC and AC is greater than AB. Okay. Similarly, you can see that this angle is greater than this angle because this is the acute angle triangle, and this is an obtuse angle triangle. So here ABC is greater than ACB, as well as ABC greater than BAC, right? So these are some of the inequalities that occur in this triangle. So why do we learn about inequality? So we have to learn some of the facts regarding inequalities. Let's draw a triangle. Suppose I'm drawing a triangle like this. This is ABC triangle. Okay, so now you can see ABC triangle. If I will slip the point A on this line towards this, then what I get a new triangle. Let's name it A dash BC. Let's again slip that point to another point, and I get A double dash BC. Okay, so now you can see when AC side was that, the angle is this ABC. Okay, when I extend AC, CA को मैंने extend कर लिया, मतलब CA डैश बड़ा कर लिया, तो उससे जो एंगल फॉर्म हुआ वो भी थोड़ा सा बड़ा हो गया. अगेन when CA डबल डैश मतलब और थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो और थोड़ा बड़ा हो रहा है. दैट मीन्स जब मैं साइड को बड़ा करती जाती हूँ, तो उसके अपोजिट में जो एंगल है वो भी बड़ा होता जाता है. इससे क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में अगर जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके अपोजिट में जो एंगल है वो भी बड़ा होगा. ठीक है, दैट मीन्स जब हम साइड को बड़ा करते जाते हैं तो उसके अपोजिट का एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाता है. सो इसके रिलेटेड एक थ्योरम है. यहाँ से आपको इतना ही समझ में आया. सो व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द साइड, then the angle opposite to that side also increases gradually. Okay, so related to this concept, you have a theorem. Okay, so let's learn what is that theorem. So this is the theorem. Read this theorem first. If two sides of a triangle are unequal मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा obviously, the angle opposite to the longer side is larger. मतलब if you draw a triangle like this, okay, जिसका एक साइड दूसरे साइड से बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे AC AB से बड़ा है. ठीक है, इस तरह से अगर बड़ा हुआ तो जो AC के अपोजिट में जो एंगल है वो AB के अपोजिट में जो एंगल है उससे भी बड़ा होगा. दैट मीन्स इफ AC ग्रेटर दैन AB, देन एंगल B, AC के अपोजिट जो है एंगल B इज ग्रेटर दैन AB के अपोजिट जो है एंगल C. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, सो हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं? सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट समथिंग. सो हमें अभी के लिए पता है AC जो है वो AB से बड़ा है. तो अब हम क्या करेंगे, AC के ऊपर एक पॉइंट D ले लेते हैं.
जॉइन बी डी सच दैट, इस तरह से डी लेंगे क्योंकि अभी ए सी बड़ा है ए बी से, डी वहाँ पे एक पॉइंट लेंगे सच दैट जो ए डी है वो ए बी के साथ इक्वल होगा, ठीक है। सो कंस्ट्रक्ट किया हमने टेकिंग डी एज अ पॉइंट ऑन साइड ए सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी, ओके। सो अभी तक गिवन क्या है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल वेयर ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ये गिवन है हमें। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल बी जो है एंगल सी से बड़ा है, और हमने कंस्ट्रक्ट किया, क्या किया, एक पॉइंट डी लिया ए सी के ऊपर सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। अभी के लिए ए बी इज इक्वल टू ए डी है, ओके। लेट मी राइट दिस फर्स्ट। सो लुक आई हैव रिटन गिवन इन द ट्राइंगल ए बी सी इज ग्रेटर दैन ए बी, एंगल बी हमें प्रूफ करना है एंगल बी इज ग्रेटर दैन एंगल सी, हमने कंस्ट्रक्ट किया ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। सो नाउ प्रूफ करते हैं। तो जो हमने कंस्ट्रक्ट किया वहीं से लेते हैं। फ्रॉम बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया, बाय कंस्ट्रक्शन ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी जो है वो ए डी के साथ इक्वल है, दैट मीन्स ये जो एंगल है वो इस एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा। कैसे, आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल के रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये पढ़ा था। सो दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए डी हुआ, दैट मीन्स ए बी डी एंगल इज इक्वल टू ए डी बी एंगल, ये दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ ये दो एंगल इक्वल हो गए। लेट्स टेक इन ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी ट्राइंगल के लिए ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, यू कैन सी। सो इन ट्राइंगल डी बी सी एंगल ए डी बी इज एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के साथ इक्वल है, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, बट दैट मीन्स ये इन दोनों से बड़ा होगा इंडिविजुअली, सो दैट मीन्स दिस एंगल इज ग्रेटर दैन दिस एंगल, ओके। सो वी कैन राइट देयरफॉर ए डी बी एंगल is greater than ADB angle is greater than ACB angle. Okay, this is an inequality. This is not an equation, it is an inequality. Okay, so now अभी देखो, पर हमें इस स्टेटमेंट में मिला है कि ये जो एंगल है ये इसके साथ इक्वल है, दैट इम्प्लाइज ADB के बदले मैं ABD लिख सकती हूँ, ABD is greater than ACB. Okay, now फ्रॉम फिगर से अच्छे से देखो, फ्रॉम फिगर से आपको पता चल जाएगा ये जो एंगल है ये टोटल बड़ा एंगल से छोटा है, ए बी सी से ए बी डी छोटा है, दैट मीन्स वी कैन राइट ए बी डी एंगल इज लेस दैन ए बी सी एंगल, ए बी डी एंगल इज लेस दैन ए बी सी एंगल, okay. So from this two inequality, let this be first inequality and this be second inequality. From inequality 1 and 2 you get जो ए बी डी है वो ए सी बी से बड़ा है, जो ए बी डी है डी एंगल है वो ए सी बी से बड़ा है, ए सी बी से बड़ा है लेकिन ए बी सी से छोटा है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं इसे बीच में से हटा लूँगी, इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता चलता है, ए बी सी इज ग्रेटर दैन ए बी डी इज ग्रेटर दैन ए सी बी, दैट मीन्स ए बी सी सबसे बड़ा है, दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड ए बी सी इज ऑल्सो ग्रेटर दैन ACB, right? ABC is greater than ACB, okay? That implies ABC कौन सा एंगल है, B एंगल is greater than C एंगल, so ये हमें प्रूफ करना था B एंगल is greater than C एंगल, so this is proved now, right? I think आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। so इसका एक कन्वर्स थ्योरम भी है जिसे हम अभी प्रूफ करेंगे। okay, this is the converse of the theorem we learnt recently. So theorem says if in any triangle the side opposite to the larger angle is longer, okay, the side opposite to the larger angle मतलब एक ट्राइंगल में जो larger angle है उसके opposite जो side है वो क्या होगा, longer होगा, ठीक है। ये उसका अभी जो हमने पढ़ा थ्योरम उसका opposite है। So now let's see a figure. This is a triangle ABC in which दिस एंगल मतलब बी एंगल इज ग्रेटर दैन सी एंगल, ये हमें गिवन है क्योंकि यहाँ पे लार्जर एंगल दिया गया है, तो हमें प्रूव करना है कि उसके अपोजिट में जो साइड है ए सी वो लॉन्गर होगा। सो किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, अभी के लिए मेरा जो बी एंगल है वो सी एंगल से क्या है, बड़ा है। सो हम ए सी पर एक पॉइंट डी लेते हैं सच दैट, इस तरह से लेंगे, पहले डी को ज्वाइन कर लेते हैं, ओके, सच दैट डी पॉइंट सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल,
मतलब DBC इज इक्वल टू DCB। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि अभी के लिए हमें ABC जो है वो C से बड़ा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसे थोड़ा सा छोटा करके इस तरह से बना रहे हैं ताकि DBC इसके साथ इक्वल होगा। ठीक है, ये अभी तक गिवन क्या है, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। एंड हमें प्रूफ क्या करना है, उसके अपोजिट साइड में, मतलब बड़ा एंगल के अपोजिट में जो AC है वो भी बड़ा होगा, दैट मीन्स AC ग्रेटर देन AB प्रूफ करना है। ठीक है, और हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया है, एक पॉइंट D लिया हुआ है AC के ऊपर, जिस तरह से कि DBC एंगल जो है वो DCB के साथ इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, सो लेट मी राइट द गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन। सो अभी मैंने जो बताया यहाँ पे मैंने लिख लिया है, आप फिगर और लिखावट को जरा कंपेयर करना, रिलेट करके पढ़ना, तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, सो नाउ मूव फॉरवर्ड टू प्रूव दिस। प्रूव करने के लिए हमने पहले क्या लिया हुआ है देखते हैं। तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन हमने लिया है DBC जो एंगल है वो इक्वल टू DCB एंगल है। जो DBC वो DCB के साथ इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दैट मीन्स उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स DB इज इक्वल टू DC हो जाएगा, DB इज इक्वल टू DC। ओके, नाउ एडिंग AD साइड ऑन बोथ साइड। ओके, DB के साथ भी मैं AD ऐड करती हूँ एंड DC के साथ भी मैं AD ऐड करती हूँ, एडिंग AD टू बोथ साइड। ठीक है, सो वी गेट DB के साथ AD ऐड किया, DB AD इज इक्वल टू DC प्लस AD। नाउ लुक, DC प्लस AD ये क्या हो जाता है, AC हो जाता है। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन 1। ओके, नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD BD प्लस AD विल बी ग्रेटर देन AB। ये क्यों है, आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है, आपकी प्रीवियस नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल जब बनता है सो सम ऑफ टू साइड्स is always greater than the third side. That means AD plus BD will be greater than AB. In triangle ABD, AD plus BD is greater than AB. Why? हमें पता है sum of two sides of a triangle is always greater than the third side. ठीक है, so this is inequality 2 from 1 and 2 we get। अच्छा, from 1 and 2 आपको 1 and 2 को थोड़ा कंपेयर करो, AD BD। सो यहाँ जो AD BD है, यहाँ AD BD का क्या इक्वल है, AD BD इज इक्वल टू AC। इस AD BD के जगह मैं AC डाल सकती हूँ, सो हियर राइट पुटिंग 1 in 2। ओके, AD BD के बदले में AC डाल देती हूँ। नाउ AC इज ग्रेटर दैन AB, सो दिस इज प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था, हमें AC को AB से बड़ा प्रूफ करना था, तो हमने अभी प्रूफ कर लिया। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन प्रूव द इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स। सो ये सिर्फ इसका प्रूफ भी याद रखना और इस इनइक्वालिटी को भी याद रखना, ये बहुत आगे काम देने वाला है। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।